Good evening, Sakshi. How are you doing? Good evening, sir. I'm doing fine. How are you, sir? I'm perfectly fine. Thank you. So, how did you spend your day? Tell me. I gone my college I and I I went to my college. yeah, I I went. went to my college Right. and went to my coaching. I went to my coaching. Yeah, Okay. And did you watch some English videos today? yeah. I watched You watched, and what did you watch in those videos? uh, uh, Taylor Swift. Okay. You already knew Taylor Swift. Do you know something about her? She's a painter or a singer. Who is she by profession? American singer. She's an American singer, right? And do you listen to her songs? No, sir. No, but now, from now onwards, perhaps, yes? Yeah. Yeah, so she writes her songs and she sings them as well. So she's a very famous American singer, and of course, you would watch her songs, you would listen to them, and you would enhance your English speaking skills and your listening abilities as well. Great. Yeah. All right, I can see Arvaz. Good evening, Arvaz. How are you doing? Good evening, sir. I'm fine. How are you, sir? I'm perfectly fine. Thank you for asking. How did you spend your day, Arvaz? What did you do? Yes, sir, I spent a very good so I spent, देखिए पूरा वाक्य बनाइए अरबाज. Sir, I spent a good day. I spent a great day. sir, I learned some vocabulary and Okay. I revised all terms. All the tenses. Very good. All right. Is there any tense that is bothering you? Is there any tense that is bothering you? Is there any tense that is bothering you? What does that question mean? Arvaz, क्या मतलब है इस question का? Yes? क्या मतलब है इसका? Is there any? Yeah, what does that mean? Is there any tense? That's bothering you. Well, begins and कोई टेंस है क्या ऐसा जो आपको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है. Is there any tense that's bothering you, Arvaz? no, sir. No, there isn't any. No, there isn't any. कोई भी नहीं है सर. Then tense. No, there isn't any. एक भी नहीं है, कोई भी नहीं. अब तो सब में मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, सब मुझे आते हैं. Very good. All right, I can see Manshi. Good evening, Manshi. How are you doing? Good evening, sir. All well? Yes, sir, I'm fine. Oh, I'm How are you? fine. I'm perfectly fine. Thank you. So, how did you spend your day, Manshi? Did you watch some English videos? Did you listen to some English news, some English, let's say, speech? Right? You did? What was it? English speech. English speech. And who was the speaker? Who was the expert? American speaker. Some American speaker? Okay. American speaker. That was an American speaker? Yes, sir. And was it okay for you to understand, or was it difficult? Was it complicated? No, sir, I can understand. I can understand, लेकिन उस समय मैं समझ पाई तो I could understand. उस समय की बात कर रहे हैं तो I could understand. मैं समझ पाई. I could understand. I couldn't. Very good. And Manshi, do you use subtitles? Do you use the subtitles? Do you use the subtitles? क्या मतलब है इसका, मानसी? Subtitles while watching in English? Subtitles, anyone? किसी को पता है subtitles क्या होते हैं? मानसी, I got disconnected. हाँ बताइए अरबाज, क्या होते हैं subtitles? इंग्लिश में
after. हाँ एग्जैक्टली इंग्लिश में नीचे चलती है एक एक स्ट्रैप चलता है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. हमेशा सबटाइटल्स ऑन करके सुना कीजिए. पहली बार में नहीं, पहली बार तो खुद ऐसे गेस वो करिए, फिर दूसरी बार में सबटाइटल्स देखिए, छुपा दीजिए उनको, दूसरी बार में खोल के देखिए कि क्या बोल रहा है वो. राइट, दैट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. ओके. Yesterday night I used with subtitle Right. Shahrukh Khan interview. ओके, अब इसको थोड़ा सा सही बोलिए. yesterday I used subtitles for watching an interview or watching the interview of Shahrukh Khan. आपने क्या बोला? Yesterday I used subtitle for Shahrukh Khan interview. So for Shahrukh Khan's interview, apostrophe s लगाना पड़ेगा. Shahrukh Khan's interview, उसका interview, right? Yes. And is he very motivational? Is he very motivational, Arvaz? Yes, sir. He is. Why do you think he is motivational? Why do you think he is motivational? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? Why do you think he is motivational? He told about your his strength. Yeah, his struggles. He told about his struggle, right? About the struggles that he faced in his life, right? And that inspires you, Arvaz. That inspires you. Yes, sir, I inspired. That inspires you. That Yes. inspires you. क्या वो आपको प्रेरणा देता है? तो आपने क्या बोला? Sorry, Manshi? Yeah. So what would you say, Arvaz? वो मुझे inspire करता है. It inspires me. It inspires me. He was he inspired me. He inspires me. He inspires me. आपको याद है ना, S लगता है अरबाज हमारे को सिंपल प्रेजेंट में he और she के साथ Yes. और it के साथ, तो आपको inspires बोलना पड़ेगा. Right? Okay. Yeah, I'll just quickly greet Pranjal and Sarita once, then I'll switch over to Manshi and Sakshi. Pranjal, good evening. Good evening, Sarita. How are you doing, both of you? Good evening, sir. Good evening, sir. All well? What did you do? Pranjal, tell me, what did you do today? You went to your school Yes, sir. and then you came back at what time? I came back at 2 o'clock. And then from 2 till 5, what did you do? I did my painting work, some painting work. Okay. And after then, I sleep. I for- slept. I took a nap. I took a nap. Oh, that's beautiful. I took a nap. I slept. Take a nap. क्या मतलब होता है इसका? Take a nap. क्या मतलब होता है take a nap? Anyone? थोड़ी नींद लेना. हाँ, एक झपकी लेना, एक थोड़ी सी नींद लेना. इंग्लिश की क्लास है, फ्रेश तो होना पड़ेगा ना, उसमें थकान तो दूर करनी पड़ेगी. So Pranjal took a nap before her English class. And how long did you take the nap for? Pranjal, how long was your nap? Half an hour? 40 minutes? 40, Yes, sir. half an hour? 30 minutes? Okay. Half an hour. Half an, and you are feeling refreshed after it? You are feeling refreshed? Yes? Okay, that's important. Yeah, I'm feeling refreshed. It's very important to take naps in between. Whenever you're extremely tired, just go and set your alarm and set it for like 20 minutes, 25 minutes. Go to sleep, a sound sleep, and just wake up. That's important. Otherwise, you get really tired. Okay, and what about you, Sarita? How did you spend your day? What did you do, Sarita? Sarita, can you hear me? Sarita, am I audible to you? Am I audible to everyone else otherwise? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Sarita, tell me, what did you do today quickly? सरिता, क्या किया आपने, बताइए. Sir. बोलिए बोलिए बोलिए. पास्ट टेंस में I
बताइए क्या किया, हिंदी में बताइए, अपन ट्रांसलेट करते हैं मिलके. आई वेंट टू द मार्केट, आई वॉच्ड टेलीविजन, आई स्पोक ऑन द फोन. Yes. बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए आप प्लीज, बिना बोले काम नहीं होगा. हमारे इन इंग्लिश क्लासेस का पर्पस क्या है? बोलना, बोलना और बोलना. बोलिए. I had a good day today. I had a good day today. Wonderful. I had a good day today. I had a good day today. मेरा आज का दिन बड़ा अच्छा दिन था. So what did you do? What did you do? सरिता, दो बातें बता दीजिए फटाफट से. What did you do? सर मैंने आज क्या क्या किया? हाँ, उसमें दो चीजें बता दीजिए अंग्रेजी में जो आपने करी. टीवी देखा, किताब पढ़ी, बाजार गए, खाना खाया, खाना बनाया. Yes, sir. तो बताइए. आए, कुछ बोलिए हिंदी में, बोलिए, अपन मिलके बनाते हैं उसको. I read a little book. I read. Little book. देखिए, लिटिल कद में होगा ना, लिटिल कद में होगा. I read a short story. Yes. है ना? I read it short. Yeah, I read a short story. I read a short story. मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी. और एक और काम बता दीजिए जो आपने किया. और खाना खाया, नहीं खाया? तो खाना तो खाया होगा. तो बताइए, आए के बाद क्या लगाते हैं? खाने की क्रिया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टू ईट. और ईट का कौन सा टेंस लेना है आपको सरिता? सेकंड फॉर्म. क्या बोलेंगे आप? I also ate food. Exactly. Also, I ate food. Perfect. बना तो दिया, फिर आप क्यों घबरा रहे थे? आते तो हैं आपको बताने. बोलिए इनको, क्या टेंशन है? ठीक है, ऑल वेल. Yes, sir. देखिए, बोलेंगे तो ही बोल पाएंगे. दैट्स द फाइनल थिंग. The more you speak, the better you become. You know, Arvaz was asking this question. It's too relevant as a question. कब बोलेंगे? जब बोलेंगे तब बोलेंगे. That's simple as that. बोलिए, बोलिए, बोलिए. गलती करते हैं, करिए. सामने वाले की टेंशन है, अगर वो आपका भला चाहेगा तो आपको करेक्ट करेगा. कुछ नहीं बोलता तो भी कोई बात नहीं, फिर उसको बोलिए, फिर बोलिए, किसी और के सामने बोलिए. एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. मुझसे पूछिए, आवाज रिकॉर्ड करके भेजिए. सर ये मैंने बोला है, ये सही बोला, गलत बोला. सर इसको कैसे बोलेंगे? ग्रुप में इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, सब हमें हेल्प करेंगे. इज दैट ओके? चलिए, so we'll quickly check with Sakshi wanted to say something. Yeah, Sakshi, over to you. Yes, sir. I just saw that. Yeah. And I'm confused. Oh, you just got to know that you are a little confused. What are you confused with? बताइए. That. That ने आपको confuse कर दिया? कैसे बताइए? कौन सा that? ये जो सर आपने लिखा है that inspiring you. हाँ, कहाँ लिखा मैंने? that inspires you. वो that inspires you. अब ये जो that है ना, ये मैंने किस रूप में लिया है? मैंने इसको किस रूप में लिया है साक्षी? मैंने इसको रूप में लिया है एज अ डूअर, सब्जेक्ट. इसकी जगह मैं ये भी कह सकता था, इट इंस्पायर्स यू, इट, दैट, इट, दिस. ये जो तीनों होते हैं ना, ये निर्जीव के लिए होते हैं, नॉन लिविंग के लिए होते हैं. दिख रहा है आपको साक्षी? कोई भी चीज है. अरबाज ने कहा मुझे शाहरुख खान के इंटरव्यूज बहुत पसंद है, मुझे आई डोंट नो, मुझे इस फिल्म स्टार के पसंद है, मुझे उस अमेरिकन प्रेसिडेंट के बहुत पसंद है. तो मैंने कहा अच्छा, तो वो चीज, वो जो है वो इंस्पायर करता है आपको? वो मतलब वो सारी देखना करना, वो वीडियोस देखना, वो सब इंस्पायर करता है. तो मैं उसको किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ साक्षी? इट, दैट, दिस. इट बोला तो ये, दैट बोला तो वो, और दिस बोला तो यहाँ और नजदीक है, पास में. तो इस प्रकार से ये आपको इंस्पायर करता है. ये क्या? वीडियो देखना. वो आपको इंस्पायर करता है, जो कल वीडियो देखा था शाहरुख का, वो इंस्पायर करता है. हाँ, वो मुझे इंस्पायर करता है. तो दैट. क्लियर है आपको? Yes, sir. राइट? Yes, sir. ओके, परफेक्ट. चलिए, मानसी वांटेड टू से समथिंग, आई थिंक सो. नो? No, sir. नो, ऑल वेल. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम आपको सिखाएंगे समथिंग इंटरेस्टिंग एज अ टॉपिक, एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी, I'll just remove this extra slide, and this one is going to be
एक्टिव पैसिव। चलिए आज एक ग्रामर का टॉपिक उठाते हैं फटाफट से, एक्टिव एंड पैसिव। बताइए किसको पता है एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे बोला जाता है? आई कैन सी देयर इज अरबाज एंड मानसी रेजिंग देयर हैंड। चलिए अरबाज से सुनते हैं पहले एक्टिव पैसिव। बताइए अरबाज क्या होता है एक्टिव पैसिव? सर जो किया जाता है, जैसे कि किताबें बेची जाती है, ओके, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है बताइए? मतलब इसमें सर सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर हम जो चीज हुई है, जो घटना घटी है, उस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इस पे कि किसने उस घटना को अंजाम दिया है, उसमें किसने उस घटना को किया है। ठीक है, तो एक वाक्य बताइए मेरे को, एनीवन? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए यार बात। The books are sold here. द बुक्स आर सोल्ड हियर, ठीक है। द बुक्स आर सोल्ड हियर। इसमें क्या मतलब है इसका हिंदी में? यहाँ किताबें बेची जाती हैं। यहाँ किताबें बेची जाती हैं, पर किसके द्वारा बेची जाती हैं वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम चाहें तो उसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बाय द वेंडर्स, बाय द वेंडर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। जब कभी भी प्रांजल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो कौन करता है काम, तो हम पैसिव के अंदर हमारी बात को लिखते हैं, और अगर हमें बताना हो कि वो बात एक्टिव में होगी तो हमारा डूअर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा डूअर किसने काम किया था वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमें कब काम में आती है ये वाला एक्टिव पैसिव? जब हम अखबार में खबरें पढ़ते हैं ना, मान लीजिए इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, उनको तोड़ा गया, तो इलीगल बिल्डिंगें तोड़ी गई, पुल का काम पूरा किया गया, सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? सरिता, अरबाज, लेकिन किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने इसको नहीं बोला, वरना हम क्या बोलते? सरकार ने पेड़ लगाए सड़क के किनारे, सरकार ने सड़क के किनारे पेड़ लगाए। लेकिन हमको पता है कि करेगी तो गवर्नमेंट को हटाओ, हमको सीधे बोलना है कि सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो हम इसको ऐसे बोलना चाह रहे हैं। तो जो अरबाज ने कहा वो ये था कि किताबें बेची जाती हैं यहाँ पर वेंडर्स के द्वारा। और इसको अगर सीधा करना हो अरबाज तो बताओ एक्टिव क्या होगा? ये तो पैसिव है ना, एक्टिव बता सकते हो? एक्टिव पैसिव। एक्टिव सर यही है कि द बुक, हेलो, हाँ बताइए। द विंडर, हेलो, क्या क्या कह रहे हैं वापस से? हेलो, हाँ हाँ बताइए बताइए, आई कुडंट गेट यू। द विंडर, द वेंडर्स, ओके, द वेंडर्स इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हम्म the vendors is the vendors are हाँ buying book. नहीं, आपने क्रिया क्यों बदल दी? बेचने की क्रिया तो बेचने है ना। द वेंडर्स ओके, द वेंडर्स सेल द बुक्स हियर। जो वेंडर्स है वो यहाँ किताबें बेचते हैं, किताबें यहाँ बेची जाती हैं वेंडर्स के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको? अब इसको ट्राई करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो आर सोल्ड है ना, सोल्ड क्या थर्ड फॉर्म है, और इसको हमको वापस से करना है सेल। द वेंडर्स सेल द बुक्स हियर। अच्छा एक और ट्राई करते हैं। आई ईट एन एप्पल। इसको बताइए प्रांजल क्या मतलब है इसका? आई ईट एन एप्पल, व्हाट डज दैट मीन प्रांजल? आई ईट एन एप्पल। ने एप्पल खाया। खाया कहाँ, पास्ट थोड़ी है। आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल हाँ खाता हूँ, खाता हूँ, और खा रहा हूँ नहीं है प्रांजल,
खा रहा हूं तो क्या होता, आई एम ईटिंग एन एप्पल, इजंट इट? Yes, sir. तो आपको अब टेंस में कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल टेंस सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। सो आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। डज दैट मेक सेंस इन हिंदी? सो हम क्या करेंगे, इसको पहले ले आएंगे, इसको पीछे भेज देंगे। तो एन एप्पल, फिर आपको क्या चूज करना पड़ेगा, इज And ओके। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, एन एप्पल को पहले स्थान पे ले जाना पड़ेगा, और हमारा जो ये वाला है ना, इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा। मैं इसको फिर से लिखता हूँ आपके लिए, ताकि क्लीन लिखूं मैं इसको। ओके, ऑलराइट, चलिए हम क्या करते हैं, जब एक्टिव पैसिव करते हैं तो एक्टिव पैसिव में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इसमें इसको घुमा देते हैं। हम एप्पल को पहले स्थान पे लेंगे, क्योंकि एप्पल जो है वो जरूरी चीज होगी। एक सेब मेरे द्वारा खाया गया, एक सेब खाया गया, कितने सेब खाए गए, एक सेब खाया गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, हमने इसको पीछे रख दिया। तो अब इसमें कोई बता सकता है कैसे बोलेंगे, इसमें क्या ऑप्शन उठाओगे आप अरबाज? इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा आपका वाक्य? हाँ, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। हाँ, तो आपका फाइनल सेंटेंस क्या बन गया, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? मानसी, yes, sir. क्लियर है? तो सवाल उठता है, पर हमें ये क्यों बोलना होता है, हमें ये क्यों बोलना है सर, हम ये क्यों नहीं बोल सकते मैं एक सेब खाता हूँ, मैं एक सेब खाती हूँ? क्योंकि हमको ये बताना है कि एक सेब खाया जाता है मेरे द्वारा, दो सेब नहीं खाए जाते, पांच सेब नहीं खाए जाते, सिर्फ एक ही सेब खाया जाता है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस प्रांजल, दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने के लिए आप उसको फर्स्ट प्लेस पे ले आते हो। द वे आई सेड, अखबारों में जब खबर छपती है तो यही होता है कि 5,000 पेड़ लगाए गए, राइट, पुल का निर्माण किया गया, क्योंकि हमारे लिए अखबारों में जो खबर छपती है उसमें क्या घटना हुई है वो ज्यादा जरूरी, किसने वो घटना करी है वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई, राइट, इसलिए इसको हमें पता होना चाहिए। चलिए अब फटाफट ट्राई करते हैं, हम सारे टेंसेस को लेके आपके साथ चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं, देखते हैं वो कितना आता है उसमें। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ सेंटेंस बताइए फटाफट से सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एक मैं बता देता हूं, आई रीड अ बुक। हाँ ठीक है, अरबाज आपने भी कहा आई रीड अ बुक। और कोई बताइए। I do my work. आई, Do my home. ठीक है, आई को हटा दीजिए अब साक्षी, कोई और व्यक्ति को लेके आइए, आई को हटाइए, कोई और लगाइए, वैरायटी करते हैं अपन बदल बदल के। और बताइए, शी कर दीजिए, शी के साथ बताइए साक्षी, शी वो अपना काम करती है। She is इज क्यों लगा रहे हो आप, आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल, शी डज, है ना। शी इज डूइंग नहीं बोलेंगे, ठीक है प्रांजल, वो टेंस अलग हो जाएगा। एक और बताइए फटाफट से। You यू, you eat my home. हाँ अब अभी खाने का काम तो हो गया ना, एप्पल खा लिया था, कोई और क्रिया करवाओ अब। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा, तुम एक गाना गाते हो, ठीक है। एनीवन? my homework is done. माय होमवर्क इज डन, तो माय होमवर्क इज डन तो कुछ और हो जाएगा, माय होमवर्क इज डन नहीं है इस कैटेगरी में। माय होमवर्क इज डन, माय होमवर्क इज डन, वो आपने ऑलरेडी पैसिव बना दिया, He loves her. आपने ऑलरेडी पैसिव बना दिया। माय होमवर्क इज डन बाय, माय होमवर्क इज डन बाय साक्षी, माय होमवर्क इज डन बाय साक्षी, साक्षी डज माय होमवर्क। वो जो आपने बोला है ना साक्षी, मैं एक बार यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। माय होमवर्क, नहीं इसको यहाँ नहीं लिखता, थोड़ा सा बीच में लिखता हूँ। साक्षी ने कहा माय होमवर्क
इज डन बाय, लगा लेते हैं बाय, चलिए अरबाज, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। मेरा होमवर्क किया गया किसके द्वारा? अरबाज के द्वारा। इसका ये पैसिव है, ये पैसिव है, ठीक है साक्षी, समझ में आ रहा है? ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब इनका क्या बनाना है हमारे को? पैसिव पैसिव पैसिव। चलिए पैसिव कैसे बनता है प्रांजल, याद है आपको? आपको इस चीज को पहले लेके आनी है, इसको पहले लेके आनी है, इसको पहले लेके आनी है, ठीक है? इसको आखिरी में ले जाना है, इसको आखिरी में ले जाना है, इसको आखिरी में ले जाना है। इसका थर्ड फॉर्म ढूंढना है, इसका थर्ड फॉर्म ढूंढना है, इसका थर्ड फॉर्म ढूंढना है, और बीच में इज एम आर चूज कर लेना जो लगाना है। इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले वाला, आई रीड अ बुक, कौन ट्राई करेगा? हाथ रेस कीजिए। अरबाज, आई रीड अ बुक। A book is read by me. Very good, wonderful. A book is read by me. A book is read by me. कोई है इसको डाउट है? सरिता क्लियर है आपको? प्रांशल, मानसी? तो मुझे एक बात बताइए प्रांजल, यहाँ पे तो मैंने जब रीड लिखा था, आई रीड, तो ये वापस से सेम क्यों हो गया? हाँ प्रांजल, वाई इज इट सेम? ये रीड जो था, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, और आई अ बुक इज रेड बाय मी, ये दोनों सेम है क्या? क्या हुआ? स्पेलिंग सेम क्यों है? एनीवन, प्रांजल और एनीवन एल्स कैन टेल मी? अरबाज? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये वर्ब, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है अरबाज, ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये देखने में हमारे इसमें प्रेजेंट टेंस की तरह ही चलता है ना, जो वर्ब होते हैं टू रीड, वैसा ही चलता है इस वजह से। चलिए सेकंड वन, हु कैन ट्राई? शी डज हर वर्क। ओके, प्रांजल विल ट्राई। प्रांजल बताइए। Her work has been done by her. हर वर्क, आपके पास क्या ऑप्शन है प्रांजल? बेटा इधर देखो, इनमें से उठाना है आपको, इज एम आर में से, और थर्ड फॉर्म उठाना है आपको। हैज बिन डन बाय हर, तो बड़ा उसका ओरिजिनल कुछ और होगा। क्या होगा प्रांजल? ये वाला ट्राई करो। हर वर्क, Her work is done by her. हर वर्क इज डन बाय, Her. वेरी गुड, हर वर्क इज डन बाय हर, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको प्रांजल? क्लियर है? Yes. अभी आपने जो बोला ना प्रांजल, को यहाँ लिख लेते हैं, एक बार होल्ड पे डालेंगे, इस पे वापस आएंगे। क्या बोला था आपने? हर वर्क हैज बिन डन बाय हर। ये बहुत ही खतरनाक सा वाक्य आपने बनाया, ये पैसिव में है ना, पैसिव में है, क्योंकि बाय हर लगाया आपने। इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका ओरिजिनल क्या होगा, ठीक है? आई कैन सी दीप्ति। गुड इवनिंग दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग? Good evening, sir. I am doing science, sir. Great, wonderful. So today, Deepti, we are working on active and passive. Active और passive पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। Active का मतलब मैं सेब खाता हूं। इसका passive क्या हो जाएगा दीप्ति? एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। समझ में आ गया आपको दीप्ति? इस प्रकार के हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. या फिर मैंने हिंदी में कहा, मैंने आज सुबह चाय पी। आज सुबह मेरे द्वारा चाय पी गई, ठीक है? इस प्रकार के वाक्य। मैंने आज खाना बनाया, आज मेरे द्वारा खाना बनाया गया, ठीक है? तो इस तरीके की बातें हम जब करेंगे तो हो जाएगा एक्टिव और पैसिव। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करना होता है दीप्ति? अभी हमने सबसे पहला वाला ही हमने टेंस उठाया है, सिंपल प्रेजेंट। इसमें बड़ा आसान काम है, हम जो बात बोलते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, सिंग हो गया। तो अब हमें क्या करना है? एक गीत तुम्हारे द्वारा गाया गया, तो इसको पहले स्थान पे रखना है हमारे को, ध्यान रखिएगा दीप्ति। और तुम्हारे द्वारा बाय यू आखिरी में आ जाएगा,
और ये जो क्रिया है, मुख्य क्रिया बीच में जो प्रेजेंट टेंस में दीप्ति, उसको आप थर्ड फॉर्म में कर देना। और जो भी व्यक्ति को आप पहले स्थान पे ला रहे हो, जो भी व्यक्ति या उस ऑब्जेक्ट को, एक गीत को लेके आ रहे हो, अ सॉन्ग को, उसके अनुसार आपको इज एम आर चूज करना है। अ सॉन्ग एम होगा या अ सॉन्ग आर होगा दीप्ति, या अ सॉन्ग इज होगा? क्या लगता है दीप्ति आपको? अ सॉन्ग के साथ आप इज लगाओगे, अ सॉन्ग इज, या अ सॉन्ग एम, ए एम, या अ सॉन्ग आर? हम्म, ये तो बताइए दीप्ति, आपको क्या लगता है सॉन्ग के साथ क्या लगाओगे? और खूब सारे गाने नहीं है, इकलौता गाना है। इज। एम तो नहीं लगाओगे ना, वो तो आई के साथ आता है, वो तो फिक्स है ना दीप्ति, तो एम तो गलत होगा। अब इज और आर में क्या फर्क है कि इज एक वचन और आर बहुवचन, तो अ सॉन्ग इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, can संग, सिंग संग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, याद है ना? तो अ सॉन्ग इज संग बाय यू, ये हो गया हमारा वाक्य। समझ में आया आपको दीप्ति? क्या मतलब हो गया इसका हिंदी में दीप्ति? अ सॉन्ग इज संग बाय यू, एक गीत तुम्हारे द्वारा गाया, गाया, गाया गया नहीं, गाया। एनीवन? गाया जाता है, ना कि गाया गया। तुम एक गीत गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो, तो तुम्हारे द्वारा एक गीत गाया जाता है। गाया गया होता ना साक्षी, तो वो तो पास्ट हो जाता, वो तब होता यू सैंग अ सॉन्ग, यू सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, तब होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्हीं वाक्यों को लेके आगे चलेंगे ना, ताकि हम कंफ्यूज हैं। इन्हीं वाक्यों, इनको तीन को पकड़ लो आप। आई रीड अ बुक, शी डज हर वर्क, एंड यू सिंग अ सॉन्ग। और ये जो बाकी की आप जो मेरे को एक्स्ट्रा बता रहे हो, उसको हम बाद में देखेंगे जब हमारे को समझ में आ जाएगा। चलिए, यहां तक ठीक है दीप्ति, प्रांजल, ओके? किसका? इस वाले का? चलो ट्राई करते हैं, देख लेते हैं आप। हाँ ये वाला, अब तो हाँ, ये माई होमवर्क इज डन बाय अरबाज, हाँ ये वाला बताओ। चलिए, आई, सुनिए, यहाँ तो पहले मैंने आपको बाय अरबाज डाला है, तो पक्की बात है कि अरबाज इज गोइंग टू कम इन फर्स्ट प्लेस, है ना? तो अरबाज, आगे बेटा डिड क्यों आएगा? डिड तो पास्ट टेंस होता है ना, इज के साथ डन आ रहा है, यानी इज दिख जाए ना आपको साक्षी, तो दिमाग में कहना ओ प्रेजेंट टेंस है, इज का मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी मेरे को प्रेजेंट टेंस लगाना है। डज, सिंग, रीड, ये वाला टेंस लगाना है। तो डन का प्रेजेंट टेंस क्या होता है अरबाज के साथ? डज। डज है ना दीप्ति? अरबाज डज किसका होमवर्क? मेरा होमवर्क। तभी तो हमने सीखा था, अरबाज डज माई होमवर्क। कौन करता है आपका होमवर्क? अरबाज डज माई होमवर्क। अरबाज मेरा होमवर्क कर रहा है, या करता है, कर रहा है नहीं करता है। तो मेरा होमवर्क अरबाज के द्वारा किया जाता है, तो कैसे बोलोगे? माई इज डन। अब बताइए, अब समझ में आ गया आपको? अब बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना हमारे को, ठीक है दीप्ति, प्रांजल, एवरीवन बी वेरी श्योर, ये हमें काम आएगा, ठीक है? सरिता, मानसी, कंफर्म? समझ में आ रहा है सरिता? ठीक है, चलिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि हमें हमारे एक्टिव जो येलो वाले वाक्य ना, एक्टिव, उनमें हमारी मुख्य क्रिया प्रेजेंट टेंस में दिखती है, और हमारे जो सफेद वाले पैसिव वाक्य हैं उनके अंदर हमें इज एम आर लगाना है, जो हमें दर्शाता है कि हमारा टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस रहेगा, और उसके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए पास्ट में चलते हैं। अब पास्ट में यही वाक्य उठाना, याद रखना। और प्रांजल का एक वाक्य मैं भी होल्ड पे डाल रहा हूँ, प्रांजल आप याद दिलाना कि सर इसको भी ट्रांसलेट करना है अपन को। कौन सा था प्रांजल का वाक्य? ये वाला है क्या? हर वर्क, हाँ, हैज बीन डन, ये बड़ा खतरनाक से इन्होंने बताया था, इसको बाद में लेंगे। हर वर्क हैज बीन डन बाय हर, उसका काम उसी के द्वारा किया गया,
था, ऐसा कुछ है। चलिए बाद में देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट में, है ना, सिंपल पास्ट में चलते हैं, वही कलर्स के साथ चलेंगे। सिंपल पास्ट कौन कौन से वाक्य थे? 1, 2 और 3। पहला क्या था? आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक का पास्ट बता दीजिए, कौन बता सकता है? आई का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ये क्या आई रीड अ बुक है या आई रेड अ बुक है? हाँ, इस वर्ब की क्या खास बात है? ये टू रीड, रीड 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 रीडिंग सब में एक सही चलता है। तो आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी। आई हैव रेड अ बुक, उसमें भी रेड। तो ठीक है, एक काम तो आसान हो गया ना दीप्ति, रीड हर जगह एक सही चलता है। काम आसान हो गया, बढ़ गया? बढ़ गया या आसान हो गया? बोल ही नहीं रहे आप लोग तो। काम आसान हो गया तो भी आसान हो गया, लेकिन कंफ्यूजन तो बढ़ गया ना, क्योंकि पता नहीं कौन सा टेंस है क्या है। चलिए, आई कैन सी कृष्ण मन्यू। गुड इवनिंग कृष्ण मन्यू, हाउ आर यू डूइंग? द मोमेंट आई विश्ड हिम ही गॉट डिसअपीयर्ड। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ही गॉट डिसअपीयर्ड। यू सिंग अ सॉन्ग, इसका फटाफट से पास्ट बताओ मुझे, कौन बताएगा? सिंपल पास्ट, यू सिंग अ सॉन्ग, जल्दी। गुड इवनिंग कृष्ण मन्यू, हाउ आर यू डूइंग? यू फाइन, ओके ग्रेट। चलिए, सो हम कृष्ण मन्यू आज पढ़ रहे हैं टॉपिक एक्टिव पैसिव, तो ध्यान दीजिएगा अब। और बच जो चुका है पार्ट जो आप नहीं देख पाए, उसको आप रिकॉर्डेड वीडियो में देखिएगा, ठीक है? चलिए, या मानसी आप बताइए हमारे को कि इसका पास्ट कैसे बनेगा। एक्टिव पैसिव नहीं पूछा मानसी, नहीं मानसी नहीं, आई थिंक दैट्स या मानसी। मानसी आप बताइए कि यू सिंग अ सॉन्ग का पास्ट टेंस क्या है? बोलिए मानसी। सॉरी, क्या बतानी है? हाँ, पास्ट टेंस बताना है बेटा इसका। यू सिंग अ सॉन्ग तो प्रेजेंट था ना। ये देखिए, तुम एक गीत गाते हो, तुमने गीत गाया, ये कैसे बोलते हैं? यू। परफेक्ट, वेरी गुड। अभी देखिए एक्टिव बना रहे हैं हम, ठीक है दीप्ति? अभी पीले में एक्टिव है, यानी कर्ता ने एक कार्य किया है। और ये तीसरा दीप्ति से पूछते हैं, माई होमवर्क, आई एम सॉरी, कहाँ गया एक्टिव तीसरा? अरे अच्छा, मैंने शायद दूसरे को ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी। शी डज हर होमवर्क, हाँ इसका इसका बताइए, शी डज हर होमवर्क का ये पास्ट टेंस क्या होगा? सरिता, शी डज हर वर्क, शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, उसने अपना काम किया। कौन बता सकता है? ये तो प्रेजेंट है ना हर बार, शी डज हर वर्क, इसका पास्ट करो। ओहो, तो वो तो अभी, हाँ मैं एक बार इसको यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर वाले को, क्योंकि मैं मिक्स कर दूंगा वरना एक बार को। मैं इसको मिटाता हूँ दूसरे नंबर को, और फिर जो अरबाज ने कहा वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। आप बताइए साक्षी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हो शायद? ये वेरी गुड, शी डिड हर वर्क, परफेक्ट। शी डिड हर वर्क। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं वाक्यों को लेके चल रहे हैं ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है? मैं वैरायटी नहीं करवा रहा। पहले हमने क्या देखा दीप्ति? हमने प्रेजेंट टेंस देखा, आई रीड अ बुक, शी डज हर वर्क, यू सिंग अ सॉन्ग, फिर हमने इसका पैसिव बना लिया। अब इन पीले वाक्यों को हम ले गए हैं पास्ट टेंस में, आई रेड अ बुक, शी डिड हर वर्क, यू sang अ सॉन्ग। यहाँ तक ओके हैं सब लोग? सरिता, कृष्णमन्यु, ओके हैं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब वही कहानी है कि आपको इसको तो यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके आना है, इसको यहाँ लेके जाना है। और अब की बार छोटा सा काम आपको अलग करना है। पहले इज एम आर था, अब बड़ा आसान है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। बताइए और इससे आसान क्या होगा? कौन ट्राई करेगा पहला वाला? हाँ एक सेकेंड, लेट मी सी, कोई और को भी तो मौका देते हैं। अभी तो आप तीन ही बोले जा रहे हैं। दीप्ति आप ट्राई कीजिए। दीप्ति आप बताइए, अ बुक को पहले स्थान पे रखिए दीप्ति। अ बुक, ठीक है।
अ बुक। Read. अब इनमें से ऑप्शन उठाओ, वॉज या वर। अकेली किताब है तो क्या लगाओगे, वॉज या वर? Was. वॉज। इस वाली क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है? Read. रेड ही होता है, वही आ रही है। वेरी गुड, परफेक्ट। अ बुक वॉज रेड किसके द्वारा? I. बाय। I. बाय के बाद क्या लगेगा? Me. हाँ वेरी गुड, बाय के बाद मी लगता है। पढ़ाया था ना आपको कि हम जब कभी भी उस हाथ पे ले जाएंगे हमारे इन लोगों को, मैं तुम वह, तो वो मी, यू, हिम, हर बन जाता है। तो बाय के साथ मी चलता है। क्लियर है दीप्ति, समझ में आ गया क्या आपको? इजी है तो ठीक है। Yes, sir. हाँ, अभी और देख लेते हैं। चलिए, कृष्णमन्यु आप बताइए और फिर सरिता आप बताइएगा। कृष्णमन्यु बताइए, हर वर्ग को पहले स्थान पे रखिए। हर वर्ग बोलिए। जब में हर वर्ग हर वर्ग, पहले हर वर्ग को बोल देते हैं। हर वर्ग क्या ऑप्शन उठाओगे, वॉज या वर? अकेला है काम या खूब सारा काम है? एक ही काम है। पहले स्टेप में वर्ग वी आई नहीं बेटा, वर क्यों आएगा, वॉज आएगा ना, क्योंकि एक काम है वॉज। Yes, और ये जो डिड दिख रहा है आपको एवरीवन, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिड का थर्ड फॉर्म? यस Done. कृष्णमन्यु, क्या होता है डिड का थर्ड फॉर्म? बोलिए। डन हाँ डन, बिल्कुल। वॉज डन किसके द्वारा? बाय। शी का क्या बन जाता है, बताइए कोई भी। Her. Her. परफेक्ट। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? मानसी, प्रांजल, साक्षी, सरिता, No. समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. चलिए अब सरिता से पूछें आखिरी। यू सैंग द सॉन्ग, तुमने गीत गाया। एक गीत तुम्हारे द्वारा गाया गया। ये किसी ने बोला था ना पिछले वाले में स्लाइड पे, तो मैंने कहा नहीं, गाया गया नहीं, गाया जाता है। तो गाया गया हो गया। आपकी बार, सरिता बताइए। अ सॉन्ग को पहले स्थान पे लाइए सरिता। क्या उठाओगे सरिता, वॉज या वर? देखो फटाफट से बताओ। A song was वॉज। और sang. इसका थर्ड फॉर्म ढूंढो। Sang. सैंग तो ये है ऑलरेडी, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पेलिंग Sing. sung sung a song was sung by। यू का क्या रहता है, बताइए कोई भी। दीप्ति आप बताइए। Her. हर को क्यों ले आया बीच में? तुमने एक गीत गाया। एक गीत किसके द्वारा गाया गया, किसके द्वारा? दीप्ति, तुमने एक गीत गाया। एक गीत डैश के द्वारा गाया गया, किसके द्वारा? जब मैं मेरे मित्र को कह रहा हूं कि तुमने गीत गाया, और वही बात उसको घुमा के बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? एक गीत, हाँ तुम्हारे द्वारा। ऑफ कोर्स दीप्ति, तो तुम वापस से तुम्हारा, तुम तो वापस क्या हो गया, यू क्या रहता है? यू ही तो रहता है। याद आया सरिता? Yes, sir. मुझे लगता है आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ, पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करते हो। देखो वापस से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इधर आपको याद है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ाया था नहीं मैंने अरबाज, आप लोगों को याद आ रहा है? आई बन जाता है मी, मैंने बताया इधर से उठ के उधर जाता है, याद है दीप्ति? आई मी बन जाता है। यू रहता है यू, याद आ रहा है सभी को? ही का क्या बन जाता है बताओ? हिम। शी का क्या बनता है? हर। इट का क्या रहता है? इट। हाँ, वी का क्या बन जाता है? हाँ, अस। आवर तो होता है हमारा पोजीशन, आर हाउस, हमारा घर, उसमें आर लगता है, ओ यू आर। ठीक है अरबाज, उसका हमेशा कोई संज्ञा आती है,
हमारा पेन, आर हाउस, आर कार, जो भी हमारी चीज है। और दे का क्या हो जाता है? देयर ओहो, दे का क्या हो जाता है? them, देम। सब फलूदा कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो अब अरबाज ने जो बोला उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, आई एम देयर। ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये पोजेशन बताता है। इसका नाम क्या है अरबाज? पोजेशन। इसके बाद हमेशा कोई संज्ञा आएगी दीप्ति। माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, इट्स कार, आर कार, देयर कार। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो यहां से जो यू था वो उठ के जब इधर गया तो भी वो क्या बना रहा? यू ही बना रहा। ठीक है दीप्ति, अब आप भूलिएगा मत, ऐसे तो फिर आप रिपीट तो करना चाहिए ना, हमें बिना रिपीट करे काम नहीं चलेगा। चलिए, तो बताइए, ये आपको क्लियर हो गया सभी को? सिंपल पास्ट में एक्टिव पैसिव कैसे चलता है? yes, yes, तो देख लेते हैं, अभी एक दो और वाक्य पूछ लेता हूं मैं फटाफट से। ओके, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। हाथ रेस करिए, देखिए किस किस को आता है। हाथ रेस करने से पता चलेगा मुझे सर, जिन ने हाथ उठाया होगा उस मतलब उन लोगों को समझ में आ गया। ही रोट अ लेटर, अभी पता चल जाएगा। सरिता हाथ उठाओ बेटा, अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो। हाँ दीप्ति, आपने हाथ नहीं उठाया अभी तक। सब डर के मारे भी हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठा लो फटाफट से कम ये तो रहेगा कि आ गया समझ में। तो दीप्ति को अभी आया नहीं इसका मतलब। कृष्ण मन्यु आया नहीं आपको ये वाला वाक्य? जिन्होंने नहीं उठाया होगा ना उन्हीं से पूछूंगा, देख लेना, कंफर्म है। दीप्ति ने उठा लिया, चलो सर पीछा छूटे, फटाफट हाथ उठाएं, काम खत्म हो। ऐसा तो नहीं दीप्ति, समझ में आया या यूं ही? थोड़ा थोड़ा बस, आधे थोड़े के ऊपर हमारी तो दुनिया चल रही है, थोड़ा थोड़ा। और कृष्ण मन्यु आपको नहीं उठाना है हाथ, है ऐसा? करना क्या है, बहुत इजी है, फिर से सुनो। एक पत्र को पहले स्थान पे ले जाओ, उसके द्वारा लिखा गया तो उसको यहां ले जाओ, तो हमारा वाक्य होगा अ लेटर। आप दीप्ति, आपसे पूछूंगा मैं, यहां तक समझ में आता है? एक पत्र, ठीक है दीप्ति? ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? बाय ही का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा, ये ओके है। अब और गौर करके सुनो, अ लेटर, ठीक है। अब फिर आप याद करो ये कौन सा टेंस है? रोट कौन सा टेंस है दीप्ति? सिंपल पास्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट में अभी क्या सीखा है हमने कि या तो वॉज लगाओ या वर लगाओ और तीसरा फॉर्म लगाओ क्रिया का। तो एक पत्र अकेला है तो वॉज लगाओगे दीप्ति या वर लगाओगे? वॉज लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और जो रोट है वो टू राइट होता है, लिखना। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है दीप्ति? हाँ बस, तो फिर क्यों आप इतना घबरा रहे हो? आ तो गया आपको पूरा वाक्य, बोल दो इसको फटाफट अंग्रेजी में दीप्ति। letter was written by him. परफेक्ट, क्या मतलब है इसका हिंदी में? एक लेटर लिखा गया उसके द्वारा। परफेक्ट, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया, या फिर एग्जैक्टली एक लेटर लिखा गया उसके द्वारा। तो फिर अब आ तो गया आपको, अब क्या दिक्कत है? या सिर्फ क्लास क्लास में आ देता है फिर छुमंतर? ऐसा तो नहीं है? अगर ये है, ऐसा है, तो फिर वीडियोस को आप देखते नहीं, इनको वापस से वॉच दीज वीडियोस अगेन एंड देन सी देम। एक आखिरी ट्राई करते हैं, अब फिर से देखते हैं कितने लोग हाथ उठाते हैं। दे दे गेव अ पेन। जिन जिनको आता है हाथ उठा लीजिए फटाफट, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी हाथ उठाता है। दे गेव अ पेन। चलो अभी तो दीप्ति का भी हाथ उठ गया, समझ रहा है। आई एक्सपेक्ट शी नोज द आंसर नाउ। चलिए सरिता आप ट्राई करिए।
सरिता बोलिए अनम्यूट करके, बोलिए। अ पेन वॉज गिवन बाय देम। परफेक्ट, सब ओके हैं? अनम्यूट करके बोलिए ओके, अगर ओके हैं तो ओके बोल दीजिए फटाफट से। अरबाज, साक्षी, यस, परफेक्ट, क्लियर हो गया आपको। कृष्णमन्यु आपने ओके भी नहीं बोला ना, हाथ रेस किया। ओके हैं आप? कृष्णमन्यु, कैन यू हेयर मी? You have to unmute yourself and you have to tell me if you can hear me, if it's okay for you. No? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने क्या देखा? हमने पहले देखा सिंपल प्रेजेंट, अब सिंपल पास्ट देख लिया। सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल था? इज, एम, आर, कोई भी एक उठा लो जो भी अकॉर्डिंग जाता है, और प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में भी वही हिसाब किताब है, बस वॉज वर्ब में से एक उठा लो और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं, we'll take this one now, present continuous। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताइए, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी को बनाना आता है क्या? आई रीड अ बुक, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई बता सकता है? और थोड़ा अच्छे से दीप्ति। आई एम रीडिंग अ बुक। आपने क्या मिस कर दिया था इसके अंदर दीप्ति? तो एम को कहाँ ले गए आप? ऐसे थोड़ी आप लेके जा सकते हो एम को कहीं पे भी। आई एम रीडिंग अ बुक, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे ना आई रीडिंग अ बुक, ये तो गड़बड़ अंग्रेजी है। ठीक है, अब आप ही ट्राई करो दीप्ति, अब गड़बड़ को दूर करो। एक और वाक्य आपके लिए दीप्ति, शी डिड हर, नहीं इसको प्रेजेंट टेंस में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको आसानी समझ आएगा। शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, वो अपना काम कर रही है। दीप्ति, शी ऑफ कोर्स, ऐसे तो कह ही नहीं सकते आप शी डूइंग हर वर्क, वो तो अंग्रेजी नहीं हुई ना। फिर और तीसरा वाक्य है, ये हम लेते हैं यहां से, देखते हैं किसको आता है ये वाला। यू सिंग अ सॉन्ग, कौन बता सकता है यू सिंग अ सॉन्ग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस? साक्षी, साक्षी, हाँ, मेरे को एकदम ऐसे कानों में ऐसे लगा वो किसने सुई चुबा दी अगर आप ये इज एम आर नहीं लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। याद है ना, प्रेजेंट है तो इज एम आर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। दीप्ति याद है आपको? नहीं याद है? सर सब याद है पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा था, है ना? तो होमवर्क करिए। देखिए मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट बताऊं, बहुत सच्ची बात है, आता है इज वन थिंग, समय पे आता है इट्स मोर इम्पोर्टेंट। आता है सर, मुझे आता है, हमें अंग्रेजी आती है। आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था ना, उससे पहले भी आपको अंग्रेजी तो आती थी। दैट वाज नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज आर यू मोर कंफर्टेबल, आर यू मोर एक्सप्रेसिव, आर यू मोर एट ईज, कैन यू स्पीक इट नाउ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो आपने उसको प्रयास कीजिए, बोलिए, यूज कीजिए, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ये मैजिकल क्लास नहीं है, ये क्लास है सपोर्ट सिस्टम, हेल्पिंग, मिलजुल के काम करना है। अगर ऐसा होता कि लोग 30-40 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी सीख जाते तो पता नहीं कुछ ही और हो जाता और हम सभी बोल रहे होते। ऐसा होता नहीं है, विच इज वेरी गुड। वो इतना अच्छा क्यों है? अगर ऐसे होता तो कोई भी अंग्रेजी बोलता, फिर तो अंग्रेजी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू कब है? जब हम मेहनत करें, अच्छे से बोले। और आपको मेरी पहली क्लास याद कीजिए, मैंने आप सभी को क्या कहा था? अंग्रेजी तो आप बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंग्रेजी में आप इमोशंस डालिए, आप इंटोनेशन डालिए, आप अपने आप को उसमें रखिए, तब अंग्रेजी आपकी बहुत यूनिक बन के आएगी। एंड आई एम अगेन स्टिकिंग ऑन द सेम, मैं उसी पे भी आज भी कायम हूं उस बात पे कि ऐसे ही होता है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंट रहिए, देखिए ठीक है। इट्स नॉट फॉर दीप्ति, इट्स फॉर एवरीवन। आई नो वी ऑल आर ऑक्यूपाइड, सबके पास कुछ ना कुछ काम है, पर समय निकालिए। हम सबने प्रण लिया है कि हम अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। इज दैट ओके दीप्ति, सरिता, मानसी? यस। चलिए, सो आखिरी में हमें साक्षी ने कहा कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम
प्रांजल से पूछेंगे थोड़ी बहुत चीजें। चलिए, ये कौन से टेंस है प्रांजल, समझ में आ गया आपको सारे? ये सारे टेंस है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब हमें इसका बनाना होता है ये हमारे एक्टिव वाक्य हैं, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अब हमें क्या बनाना है प्रांजल इन सभी का? पैसिव 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 पैसिव। ये तो सबको पता है कि बुक यहाँ पे आएगी, बाय मी यहाँ आ जाएगा, हर वर्क यहाँ आ जाएगा, बाय हर यहाँ आ जाएगा, अ सॉन्ग यहाँ आ जाएगा, बाय यू यहाँ आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अ बुक बाय मी, हर वर्क बाय हर, अ सॉन्ग बाय यू। यहां तक किसी को डाउट है? कृष्ण मन्यु क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यहाँ तो बड़ा सिंपल काम है। अब बीच में क्या गपला करना है, हमारे को घुमाना फिराना है, उसको हम देखते हैं। इसमें इज एम आई एम सॉरी इज एम आर प्लस बीइंग BEING मैंडेटरी लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये बीइंग लगाना है प्लस। चलिए, तो क्या करना है आपको? स्क्रीन पे देखिए एवरीवन, बहुत सिंपल है। आपको इज एम आर लगाना है, बीइंग लगाना है मैंडेटरी, और थर्ड फॉर्म लगाना है। कौन ट्राई करेगा फर्स्ट वाला? सरिता को ट्राई करने देते हैं, एक बार सरिता ट्राई करिए। Book is reading. A book is reading by me. देखिए, अ बुक इज रीडिंग हो गया, किताब पढ़ रही है। ये तो चमत्कार ही हो जाएगा कि किताब पढ़ने लग जाएगी। तो एक किताब पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो इसके बाद क्या लगाना है हमारे को सरिता? Being. हाँ, बिना बीइंग लगाए तो जादुई काम हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें करने लग जाएगी, वो एक्शन। ठीक है, अ बुक इज बीइंग, और इसका नहीं, रीडिंग क्यों लगा रहे हो? इसकी क्रिया क्या होती है रीडिंग की? मुख्य क्रिया रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है सरिता? रेड। तो पूरा वाक्य बोलो अंग्रेजी में, अ बुक बीइंग रेड बाय मी। क्या मतलब है इसका अंग्रेजी से हिंदी में? कोई बता सकता है? बुक इज बीइंग रेड बाय मी, कोई भी? मेरे द्वारा। हाँ, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. क्योंकि सबसे पहले में हमने क्या देखा था अरबाज? एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, फिर हमने देखा एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई, और अभी हमने क्या देखा? एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। समझ में आता है सभी को? दीप्ति ठीक है, मानसी, कृष्णमन्यु। Yes, sir. कृष्णमन्यु आप रिप्लाई नहीं करते हो मैं जब पूछता हूँ आपसे। Yes, sir. Yes, sir. So you will have to be active in the class, right? We are almost at the verge of our completion. We are just left with 3 more days after today's class. So please be active in the class. Okay. So आप ट्राई कीजिए अब प्रांजल, ये वाला, she is doing her work. Yes, sir. हाँ, Her work is being done by her. her work is being done by her. कौन कौन है जो हाथ रेस करके बताना चाहेंगे कि ये सही है जो प्रांजल ने बोला है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो सही है तो। Sir, I did. डिड आएगा, चलिए लगा लेते हैं डिड एक बार। और कोई जो कहता है कि प्रांजल ने सही बोला या साक्षी ने सही बोला? प्रांजल और साक्षी, और कोई और नया जवाब देना अरबाज आपको? Sir, सही है। कौन कौन सा सही है, प्रांजल और साक्षी? डन या डिड? Pranjal, the work is being done by her. ओके, या सो सही उत्तर है जो प्रांजल ने कहा, हर वर्क इज बीइंग डन बाय हर। ये डिड क्यों लगाया आपने साक्षी? डिड तो होता ही नहीं थर्ड फॉर्म। सर मुझे लगा सेकंड फॉर्म आनी है पास्ट टेंस। ओहो, ये लिख तो रखा है मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ पे। अलर्ट रहिए, बिल्कुल एकदम एक्टिव, तभी तो काम चलेगा। ओके, किससे पूछूं मैं? पूछूं कृष्णमन्यु से। कृष्णमन्यु आप बताओ,
You are singing a song. बोलिए. Yes, sir. हाँ, a song. A song किस श्रेणी में जाएगा? is में जाएगा कि am में जाएगा कि are में जाएगा? किस में जाएगा? दीप्ति किस में जाएगा? a song is में जाएगा. और फिर क्या लगाओगे? कंपलसरी है being. और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म. वेरी गुड. तो पूरा वाक्य पढ़ दो दीप्ति. अ सॉन्ग. वेरी गुड. अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू. मैं फिर से लिख देता हूँ इसको क्लीन वे में. अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू. क्या मतलब है इसका हिंदी में दीप्ति? एक गाना गाया गया तुम्हारे द्वारा. गाया गया. गाया गया कैसे हो गया? वो तो अभी भी चल रहा है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है टेंस तो. गाया जाता. गाया. ओके सुनिए. चलिए अभी अभी दूर करते हैं कंफ्यूजन. दीप्ति ने कहा एक गाना तुम्हारे द्वारा गाया गया. फिर एक ने कहा एक गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है. तो सही उत्तर है जो आपने कहा. एक गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है. कंटिन्यूअस. मुश्किल है कि इतना समझ में आ रहा है? अरबाज, सरिता, साक्षी, मानसी, प्रियंका, सॉरी प्रांचल. ऑलराइट. कृष्णमन्यु. Yes, sir. हाँ यस सर तो कर देते हो फटाफट. आप जवाब नहीं देते हो. अब जवाब देना. देखिए जवाब देने में एकदम आगे बढ़ के जवाब दो. अपनी क्लास में कोई जजमेंट नहीं है. आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और सीख लेंगे. राइट. मेहनत कीजिए. ओके आगे बढ़ते हैं. अब टेंस को हम बदलते हैं. हम नए टेंस पे चलते हैं. एक और टेंस लेता हूँ. बहुत सारे टेंसेस में नहीं करेंगे क्योंकि इतने टेंसेस में कोई बोलता भी नहीं है. एक और लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. ओहो प्रेजेंट परफेक्ट याद है किसी को या भूल गए? हाँ कोई चीज जो खत्म हो चुकी है लेकिन उसका असर वर्तमान तक आता है. हैज और हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा के बनता था. याद है आपको? तो बताइए इन वाले वाक्यों को उठाते हैं यहां से. हाँ आई रीड अ बुक का क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर? हाँ आई हैव के बाद अच्छे से बोलिए. आई हैव रीड अ बुक या आई हैव रेड अ बुक? हाँ क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? है. मैंने एक किताब पढ़ी है. लगाया था ना है हमने दीप्ति. याद है आपको? हाँ दूसरा वाक्य एक्टिव का क्या बेटा? She had read a book. सॉरी वंस अगेन. इफ She had read a book. या शी हैज रेड अ बुक. हाँ वो भी इसी प्रकार का. नहीं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा आपके बात. क्या कह रहे हो कृष्णमन्यु? सर मैं बोला कि she had read a book. ये बोल सकते हैं ना ये भी? हाँ ये भी बोल सकते हो. शी हैज रेड अ बुक. बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो इसी कैटेगरी का एक और आप उदाहरण दे रहे हो. उसने एक किताब पढ़ी है. शी हैज रेड अ बुक. ठीक है ये एक उदाहरण है. चलिए अब हम देखते हैं. एक और वाक्य था हमारा. याद है किसी को? ओहो कहाँ गया? ये रहा. चलिए शी डज हर वर्क. इसका बताइए फटाफट से कौन बता सकता है इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट में? सॉरी शी. हाँ साक्षी. ओहो पहले डिसाइड करो डिड के डन. थर्ड फॉर्म तो डन ही है. डिड तो है ही नहीं. डिड है हमारा सेकंड फॉर्म. आई डिड यू डिड उस प्रकार से. ठीक है. और तीसरा एक्टिव में क्या था वाक्य? यू सिंग अ सॉन्ग. तुम्हें गीत गाते हो. उसका कौन बता सकता है? सरिता.
Yes, sir. क्या होगा इसका? यू हैव संग अ सॉन्ग। यहाँ तक ओके हैं क्या आप? यहाँ तक ओके हैं आप लोग? मतलब ये हमारा मेन हमारा इस प्रकार से चलेगा, ठीक है? ओके, जो हमारी मेन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस प्रकार से। अब इसमें हमें काम क्या करना है? इसको हमें पैसिव बनाना है, ठीक है? इसको पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनता है? बहुत सिंपल है, हैव या हैज लगाना है, बिन लगाना है। अब आपको प्रांजल का वाक्य याद आएगा। प्रांजल ने वाक्य बोला था ना, याद है सभी को? नहीं याद होगा, मैं बताऊंगा। प्रांजल आपके वाक्य पे चलेंगे अभी अपन। क्या करना है हमें? हैव प्लस हैव स्लैश हैज या हैव काम में लेना है, प्लस बिन लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। यहां तक समझ में आता है सभी को? Yes, sir. तो अभी हैव हैज में से उठाना, कोई बिन लगाना और थर्ड फॉर्म लगाना। बताओ कौन लगा सकता है पहला वाला वाक्य? सरिता आप ट्राई करना चाहोगे पहला वाला वाक्य? अरबाज? A book has been read by me. Very good, wonderful. A book has been read by me. और बताओ, कोई डाउट किसी को? दीप्ति, साक्षी, प्रांजल, राइट? ओके, प्रांजल अब आप ट्राई करो बेटा सेकंड वाला। She has done her work. Her work has been done by her. हाँ, उसका काम उसी के द्वारा किया गया है। हर वर्क, और कौन करेगा? स्कूल का होमवर्क तो उसी को करना पड़ेगा, हम थोड़ी करेंगे उसका होमवर्क। हर वर्क हैज बीन डन बाय हर। हर वर्क हैज बीन डन बाय हर। ये मेरे को अब वाला वाक्य देखते हैं जो प्रांजल ने बोला था यहाँ पे कहीं पे। याद कीजिए प्रांजल, ये वाला वाक्य याद आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, तो आपने इस कैटेगरी का वाक्य बोला था जो अभी हमने जाके सीखा है। वो भी आपने कैसा बोला था? पैसिव बोला था। तो एक्टिव भी नहीं था, वो तो पैसिव था। तो अब उसका एक्टिव समझ में आ गया आपको? उसका एक्टिव क्या हो जाएगा? हर शी हैज डन हर वर्क, क्योंकि बाय हर मतलब शी, वो एक्टिव हो गया। शी उसने क्या किया है? हैज है, डन हर वर्क, शी हैज डन हर वर्क। चलिए, और अंत में यू हैव संग अ सॉन्ग, तुमने गीत गाया है। कौन ट्राई करेगा? हाथ रेस कीजिए। सरिता आपको ट्राई, मानसी से ट्राई करवाते हैं। चलिए मानसी आप बताइए। A song. हाँ, अ सॉन्ग किस कैटेगरी में मानसी? सॉन्ग हैव आएगा या हैज आएगा? हैज आएगा। और क्या लगेगा? बिन लगेगा। बिन बिन अ सॉन्ग हैज बिन संग। वेरी गुड। देखिए, संग बाय परफेक्ट। इसमें अच्छी बात क्या होती है दीप्ति? प्रेजेंट परफेक्ट में जो ये रेड होता है ना, वही ये रेड होता है। ये जो डन होता है वही ये जो डन होता है वही ये वाला डन होता है। ये जो संग होता है वही ये वाला संग होता है। तो इसमें टेंशन ही नहीं लेनी, सेम सेम चलते हैं। ठीक है एवरीवन, इज दैट ओके? राइट? चलिए एक दो और सेंटेंस करें इस पे, या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? ओके, मैं अब आपको इसकी करें और प्रैक्टिस एक दो और। ओके, तो आप ही बताइएगा मुझे, आपसे पूछता हूं मैं। आप एक वाक्य बताइए मुझे, दीप्ति आप खुद ही बताइए। उन्होंने खा लिया है। उन्होंने एक सेब खा लिया है। नहीं, उन्होंने कुछ सेब खा लिए हैं। हाँ, ये अच्छा है। उन्होंने कुछ सेब खा लिए हैं। दीप्ति, दे हैव, वेरी गुड, दे हैव ईटन। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ पेन को। दे हैव ईटन, वेरी गुड। क्या खा लिए हैं? सम
Some apples, very good, बहुत बढ़िया। उन्होंने कुछ सेब खा लिए हैं, कुछ सेब उनके द्वारा खाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब पहले स्थान पे क्या आ जाएगा दीप्ति, आपको ही बताना है हमारे को। सम एप्पल्स, बहुत बढ़िया। कुछ सेब, सम एप्पल्स। अब याद कीजिए, ईटन तो लगाओगे आप, लेकिन उससे पहले हैव और हैज में से तो चुनोगे ना आप, और बिन भी तो लगाना है आपको। हैव हैज में से उठाना है दीप्ति, बिन लगाना है, फिर जाके ईटन लगेगा, ऐसे थोड़ी ईटन लगेगा। तो खूब सारे सेब हैं तो हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे? खूब सारे सेब हैं तो हैव बिन बाय देम। ये तो आपको बड़े अच्छे से याद है, बाय के बाद वाली सारी चीजें। चलिए, एकदम ठीक है। सब ओके हैं? से अनम्यूट करके बोल दीजिए यस अगर ओके हैं तो। वेरी गुड। सम एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम, कुछ सेब उनके द्वारा खाए जा चुके हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा टेंस। लेट्स मूव अहेड। ओके, एक और टेंस देखते हैं हम। अब हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर पे। सिंपल फ्यूचर करते हैं, ठीक है? पहले एक काम करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस कर लेते हैं, फिर फ्यूचर सिंपल पे चलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस। ओ, पास्ट कंटिन्यूस किस किस को याद है? आपको याद है मैंने वीकेंड पे कहा था कि पढ़ के आना सारे टेंसेस। ये टॉपिक था वो जो मुझे ध्यान था, इसके अंदर सारे टेंसेस सब याद आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस बताओ, पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव बताओ पहला। अच्छा, he was चेंज करते हैं। चलो अभी अरबाज ने कहा कि चेंज कर देते हैं सेंटेंस। बट एक बात बताओ अरबाज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये जो क्रिया है ना, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना तब तक पैसिव नहीं बन सकता। ये बड़ा अच्छा इनका एक वाक्य था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, पास्ट कंटिन्यूस ही तो है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। पर इसमें समस्या क्या है अरबाज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आप बोलोगे स्कूल है ना सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है इसके ऊपर असर आता है। स्कूल में कोई असर थोड़ी आया, मैं तो स्कूल गया हूं ना। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सीधा असर सीधा सीधा है। जैसे आई सैंग अ सॉन्ग। हाँ, तो ट्राई कीजिए कोई ऐसी बात बोलिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि करना क्या होगा हर बार, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बताइए। अच्छा, मानसी ने बोला आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है या नहीं है? सब लोग अनम्यूट करके हाँ ना बोलिए, यस नो। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है मानसी, शी वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। पर इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है मानसी? है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के चलेगा नहीं काम। अब हिंदी में भी शी वॉज स्टडिंग, वो रात को पढ़ रही थी, पर क्या पढ़ रही थी? तो वो वस्तु जब तक नहीं आएगी ना मानसी, तब तक वो ऑब्जेक्ट हमारा उठ के आगे नहीं आएगा, इसे वो बनाना पड़ेगा यार। बात सॉरी, ही वॉज हाँ, वो एक पत्र लिख रहा था। वेरी गुड। और बताइए, दो तीन और वाक्य बताइए फटाफट से सब लोग। एक एक करके। आई थिंक साक्षी ने कुछ कहा, शी वॉज, ओह शी वॉज डांसिंग से काम नहीं चलेगा। डांसिंग के बाद कोई वो वस्तु आनी चाहिए, समझिए इस चीज को, है ना? हाँ, शी वॉज वॉचिंग टीवी। हाँ, मतलब ये वस्तु आनी चाहिए। साक्षी ध्यान रखिए, इसके बिना आप बता ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा मैं पढ़ रहा था, तो मैं इसका उसको घुमाऊं कैसे? लेकिन मैं पत्र लिख रहा था, तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, ये हो गया। लेकिन मैं पढ़ रहा था, इसमें मैं क्या उठा के आगे लाऊं? कुछ है ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, साक्षी समझ आ गया? मानसी आपको भी? हाँ, एक आखिरी ले लेते हैं दीप्ति का। दीप्ति बताइए, दे वर ईटिंग सम फ्रूट्स, वो कुछ फ्रूट्स खा रहे थे। यहां तक सब ओके हैं?
ये पास्ट कंटिन्यूस है, सब ओके हैं इससे? तो चलिए अब फटाफट से इसका बनाते हैं हम पैसिव। अब तो आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए पैसिव बनाने के। पैसिव कैसे बनेगा? बड़ा आसान तरीका है पैसिव बनाने के लिए। हमारे को ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पे लाना है, के साथ वॉज और वर लगाना है, ठीक है, और प्लस करना है हमारे को बीइंग। क्योंकि देखो कंटिन्यूस की एक विशेषता है, कंटिन्यूस जहां पे भी आएगा ना उसमें क्या शब्द चलेगा दीप्ति? बीइंग। बीइंग चलता है हमेशा पैसिव में, प्लस बीइंग। और कौन सा फॉर्म चलता है? थर्ड फॉर्म। तो देखो सब जगह ही चलता है, मुझे लगता है सब जगह थर्ड फॉर्म ही था। अब बताओ कौन ट्राई करेगा? ही वॉज राइटिंग अ लेटर। साक्षी आप ट्राई कीजिए, देखते हैं आप बता पाते हैं नहीं बता पाते। अ लेटर, उधर से देखना साक्षी। हाँ वेरी गुड। वॉज, बीइंग, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म written, written by him, वेरी गुड। बताइए किसी को डाउट इसके अंदर? एनीवन? अरबाज क्लियर है? सी बोलना चाह रहे थे सरिता, मानसी, दीप्ति? ओके दूसरे पे आ जाओ। शी वॉज वॉचिंग टीवी। आप बताओ सरिता, आपने बताया था वाक्य से शी वॉज वॉचिंग टीवी। टीवी वॉज, हाँ टीवी क्यों देख रहा था? ये लगाना है ना आपको। हाँ बीइंग, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड। किसके द्वारा? हाँ बाय। हाँ क्या हो जाएगा सरिता? बाय। आवाज साफ नहीं आ रही सरिता, क्या कह रहे हो? बाय हर बोला क्या आपने? चलो फिर ठीक है, बाय हर। परफेक्ट। ओके समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कुछ भी बोला हो पहले, पर बाद में अगर आंसर समझ में आ जाए तो बात है, ठीक है? समझ रहे हैं आप सभी? दे वर ईटिंग सम फ्रूट्स। आपको बताना है दीप्ति ये वाला। तो ये एप्पल्स का और फ्रूट्स का ठेका हमने आपको दे दिया, आप हेल्प करो इसमें। सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स। हाँ दीप्ति इधर जाइए ना, आप इधर जाके देखो। आप हैव क्यों बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? अकेला फ्रूट थोड़ी है, खूब सारे हैं दीप्ति। वर बीइंग ईटन, किनके द्वारा? हाँ परफेक्ट। बताइए किसी को डाउट इसके अंदर? अरबाज, मानसी, साक्षी क्लियर है अच्छे से? ये और ट्राई करना है? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए एक और आखिरी देख लेते हैं। एक आखिरी टेंस में सिखाता हूं आपको, और फिर हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे घर पे करने का, होमवर्क। ओके एक आखिरी फॉर्म है जो है हमारा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर बताओ, कुछ वाक्य बताओ सिंपल फ्यूचर में। अभी पता चल जाएगा कितना पढ़ा है आप लोगों ने। सर की बात मानते हो नहीं मानते हो, देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ विल वाले। बताओ दीप्ति। हाँ अरबाज बताइए, बताओ अरबाज। I I will later. आई विल I will later. राइट। कौन? अरबाज लिखने की क्रिया कौन डालेगा बीच में? Or I will write a letter. इतना मत आप स्पीड से भागोगे, लिखना ही भूल जाओ और चिट्ठी पोस्ट करके आ जाओ और वो कहे भाई तुम्हें पत्र तो आया था बड़ा खाली था उसमें लिखा नहीं। वो मैं वो एक्चुअली लिखने वाली क्रिया भूल गया था, ठीक है? तो बोलो इसको आई विल, आई विल राइट अ लेटर। हाँ और बताइए मानसी क्या बोल रहे हो आप? दे विल कुक द डिनर, वो खाना पकाएंगे। डिनर DINNER। और अंत में एक और वाक्य बताइए कोई भी। ओके
मैं सुनूंगा फिर, ध्यान रखना ये, आई विल लर्न इंग्लिश। पर ये तो पास्ट टेंस होना चाहिए था ना दीप्ति, वीकेंड पे पढ़नी थी ना अंग्रेजी आपको, फ्यूचर टेंस में डाल दिया आपने बहुत हिसाब से कि सर मैं तो फ्यूचर टेंस में डाल रखा है तो भविष्य में होगा, काम अभी नहीं हो सकता। चलिए अब करना क्या है, बहुत आसान है, हमें बस इसके अंदर विल, जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट समझ गए आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले स्थान पे रखना है, प्लस विल काम में लेना है, बी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। और बताओ कितना आसान है, कौन ट्राई करेगा पहला वाला? दीप्ति आप बता दो। A letter will be written किसके द्वारा? परफेक्ट। और बताइए सेकेंड वाला कौन ट्राई करेगा? प्रांजल आप ट्राई करोगे? They will cook the dinner. Pranjal, are you there? Yeah. The dinner The dinner will be cooked by them. very good. Will be cooked by them. Perfect. और अंत में जो दीप्ति का सेंटेंस है, I will learn English. कौन ट्राई करेगा? मानसी। हाँ बताइए। English will be learning by me. हाँ लर्निंग कर दिया, लर्निंग तो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वो थर्ड फॉर्म तो होता ही नहीं है मानसी। Learn by me. स्पेलिंग बताओ आप। Learn. LEARN, ये वाला ही बोल दिया आपने तो, थर्ड फॉर्म ये थोड़ी होता है। लर्न का थर्ड फॉर्म दीप्ति? ED, लर्नड, या LEARNT भी बोलते हैं, लर्नड, लर्नड या लर्नड, राइट, विल बी लर्नड बाय मी, LEARNET, राइट। सो ये हो सकता है। चलिए परफेक्ट, क्लियर है सभी को? ओके पर ये भविष्य में नहीं है वाक्य, आप मत सोचना दीप्ति ने सबकी लाइफ सेट कर दी कि सर भविष्य की बातें हैं तो हम तो भविष्य में करेंगे। आई विल लर्न इंग्लिश, इंग्लिश विल बी लर्नड बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा सीखी जाएगी नहीं, सीखनी है अभी से ही। ठीक है दीप्ति? ऑन अ लाइटर नोट। चलिए, so with that we have come to the end of our today's session. Tomorrow we are going to work on something that I am going to show you. मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, इसमें कहानी है, इस कहानी को पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे। कल मैं आप लोगों से इसका उच्चारण करवाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन में चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे मधुर अंग्रेजी में इसको पढ़ें, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक करके आइएगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनका उत्तर ढूंढ के लाइएगा। वैसे अच्छी बात यह है कि उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं, फिर भी ढूंढ लीजिएगा। और एक और कहानी दे रहा हूं, अगर समय मिले तो इस कहानी को भी पढ़िएगा। और आखिरी में एक और कहानी है, तो इतनी कहानियां नहीं पढ़नी, सिर्फ 2 कहानियां पढ़नी है। पहली कहानी है हमारे पास द एडवेंचर्स ऑफ द फॉरेस्ट हाइक, और दूसरा है हमारे पास ब्यूटी ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती। ये दोनों स्टोरीज पढ़ के आएंगे आप। कल मैं उच्चारण करवाऊंगा आपसे क्लास के अंदर, प्रोनाउंसिएशन शुड बी स्मूथ, राइट। और मैं इस पे कुछ आपको एक्टिविटी भेज रहा हूं, आप इस टेंस को देखिएगा, इस ग्रामर पॉइंट को देखिएगा, एक्टिव से पैसिव वाले को। All right, so that is it. Do you have any questions for me? Anyone? Any questions? No, sir. No questions? All right. So with that, we have come to the end of our today's session. And as I mentioned to you, this is going to be our last week. We will be meeting tomorrow, day after tomorrow, and Friday is going to be our last day. So please, whatever questions if you have, ask me those questions in these classes. And even after these classes, we'll stay connected on the group wherein you can ask me questions and you can always enhance your English. All right? Great. So take care of yourself and have a great evening. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.